A Muslim cleric has now criticized cricketer Mohammad Shami for not observing Roza, for not fasting during the Ramzan season. And this after Shami, in that picture that's since gone viral, can be seen consuming juice during the match against New Zealand. The Muslim cleric has come out to question this, saying, why is Shami drinking juice during Roza? Remember that Shami is currently part of the playing 11 in Dubai for the Champions Trophy, and obviously for a sports person to maintain a fast is challenging. But you got Muslim clerics questioning him, saying, why is he consuming juice? Why is he not fasting? अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। मोहम्मद शामी इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनके मन में ऐसा होगा कि मैं रोजा रखूं या फास्टिंग करूं, तो उसके कारण मेरा परफॉर्मेंस 1-2% इधर उधर हो जाए और उसके कारण इंडियन टीम अगर हार जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सो नहीं पाएगा, वो जी नहीं पाएगा। वो इंडियन है, हार्डकोर इंडियन है और उन्होंने इंडियन टीम को बहुत बार जिताया भी है। तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त ये विषय नहीं लाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है और सामाजिक विषय हो, वहां पे धर्म लाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को अगर आप रोड पे जाके पूछोगे, वो बोलेगा वी आर प्राउड ऑफ मोहम्मद शामी। Let's bring in Samarth Srivastava for more details on this. Samarth, needless controversy breaking out here over Mohammad Shami, a cricketer representing India, playing in the Champions Trophy, consuming juice as a Muslim cleric has called him out, saying, why isn't he observing a fast? Exactly, a new controversy has erupted after Indian cricketer Mohammad Shami was seen taking some energy drink during the match of that qualifier, and where we saw India reach the finals and will be taking on the New Zealand. But now a Muslim cleric, he's the national president of All India Muslim Jamaat from Bareilly, Mohammad Shahabuddin. He has questioned Mohammad Shami drinking that energy juice during the holy month of Ramzan, the Roza that we say. He clearly questions Shami for taking that energy drink and even seeks forgiveness. He asked him to seek forgiveness from Allah by doing this particular sin. He says that he has become a mujrim, a criminal of Sharia after doing this particular thing. As we know that there is no Bumrah in the Indian team, so responsibility has exceeded for Mohammad Shami in the Indian team, with him being the leading pacer in the side in the playing 11. And for that, Shami might feel that he needs to be full throughout. He needs to be full with the energy drinks, whatever the cricketers take for playing, for giving their best on the field. So he must have taken that particular thing. But now the Muslim clerics, this cleric from Bareilly, are all questioning Mohammad Shami for taking that energy drink and in a way doing that particular sin as per them, and also seeks forgiveness from Mohammad Shami. Back to you. Absolutely bizarre controversy this, at a time when everyone's cheering on Team India for the finals of the Champions Trophy, which we're just a few days away from. You're seeing the spotlight on all of these bizarre issues. First, of course, with Rohit Sharma being fat shamed, now with this Muslim cleric questioning why Shami is consuming drinks when he's supposed to be on a fast, when he's supposed to be on Roza. The reality is that Mohammad Shami is making the country proud, playing such a crucial role in the Indian cricket team. Let's get you also Mohammad Shami's brother, Zaid Sultan, who's joining us on this broadcast. Zaid जी, आपको क्या कहना है इसके बारे में? जब मोहम्मद शमी हमारे टीम में इतने अच्छे से खेल रहा है, अभी एक सवाल आया है कि शमी रोजा क्यों नहीं रख रहा है? हेलो जी जैद जी। जी जैद जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपके रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, जब अभी एक मुस्लिम क्लरिक आकर बोल रहे हैं कि शमी क्यों रोजा नहीं रख रहा है जब मैच हो रहा है? नहीं, रोजा रखना इस्लाम में फर्ज है, जहाँ उन्होंने ठीक कहा है, और सब लोग, हर मुसलमान जानता है रोजा और नमाज इस्लाम में फर्ज है, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। लेकिन जब इंसान सफर में होता है तो रोजे में उसमें छूट होती है, इंसान वो रोजा बाद में रख सकता है। और ये इमाम साहब को मुझे लगता है कुछ बुक्स पढ़ लेनी चाहिए थी इस बयान देने से पहले कि इंसान जब सफर में होता है
इस लोगों को, हम लोगों से ज्यादा इमाम साहब को ज्यादा पता होगा कि जब इंसान सफर में होता है तो रोजे में छूट होती है। नहीं तो जैजी, क्या आपको लगता है कि ये सब जो मतलब बात हो रहा है ये सब एक नीडलेस कंट्रोवर्सी है? जैसे ये इमाम बोल रहे थे कि एक अपराध किया है मोहम्मद शमी ने। नहीं, ऐसा इस्लाम में कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है ऐसे ऐसे मौलाना जो लोग होते हैं ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए ये सब बयान देते हैं, और शामी भाई को तो बहुत पहले से ही इन सब मसलों पर ट्रोल्स करते हैं। और हम लोग कई दिन से देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और तमाम उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती या फाइनल जीते। वो लोग सिर्फ, उन्हें कुछ नहीं मिला तो कि हाँ शामी अच्छा कर रहा है, शामी को ट्रोल कर लीजिए। डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे लोग बयान देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जैसे ऐसे बात करते हैं ये इमाम, या इसके पहले भी शमी के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये पूरा कॉन्स्टेंटली टारगेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं शमी को? बिल्कुल, मुझे तो इस बयान से ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हम सभी इमाम की इज्जत करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं करते। लेकिन जहां तक इन लोगों को सोच लेना चाहिए कि एक हमारा बेटा देश के लिए खेल रहा है और उसी चीज को लेकर दूसरी कंट्रीज उसको ट्रोल्स करती हैं, उसी चीज को लेकर तुम लोग ट्रोल्स करते हो, जबकि सबको ये पता होता है कि रोजे में क्या क्या छूटे हैं, क्या क्या नहीं है। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी थी शायद, तो पूरी पाकिस्तान की टीम कॉफी पी रही थी रोजे में। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसमें इतना बड़ा विवाद होना चाहिए था, और इमाम साहब को थोड़ा सोचना चाहिए था कि सब कुछ टीआरपी नहीं होती है, एक देश की भी कुछ चीज होती है, और इस्लाम में भी ये नहीं है कि एक दूसरे को इस तरीके से ट्रोल्स किया जाए। मुझे लगता है इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़ लेनी चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि रोजे में बहुत ज्यादा छूट होती है। जी जैद जी, आपको पता होगा तो इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक प्लेयर के लिए जैसे मोहम्मद शमी के लिए जब मैच और ये चैंपियंस ट्रॉफी जैसे क्रूशल ट्रॉफी हो रहा है, कितना मुश्किल रहता है उस समय एनर्जेटिक रहना, एक्टिव रखना, और क्या प्रैक्टिकल होगा उस समय ऐसे बात करना कि रोजा रखो? देखो, जब इंसान देश के लिए खेलता है तो उसके सामने बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। हमें पता है कि हमारे इस्लाम में क्या चीज है क्या नहीं है, और उसमें शामी भाई का सीधा मोटिव यही रहता है कि वो पहले अपने देश के लिए करें, और देश को, जहां तक मुझे लगता है उनका हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है। इस चीज के लिए बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल्स भी करते हैं कि भाई उसने रोजा ये और वो, जहां तक मुझे लगता है ये सही नहीं है। और हमारा सीधा फोकस सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर, और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल जीत चुकी है, और अब फाइनल में 2 तारीख को हम लोग फाइनल उठा के अपने देश लेकर आएंगे। हमारा सीधा मोटिव फाइनल जीतने का है, बाकी हम लोग इन मौलानाओं की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें भी पता है ये कहाँ का सही है कहाँ तक गलत है। 100%। जैद जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड अ वेरी फिटिंग मैसेज गोइंग अक्रॉस देयर फ्रॉम मोहम्मद शमी's brother who says, look, these are needless controversies, we're not going to put our focus on any of this, we're focused on just one thing, which is to win the finals of the Champions Trophy and bring glory, pride for India. Let's listen in once again to what this cleric said that's triggered this entire debate. अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है।